حویلی نما بڑے سے گھر کے صحن میں صبح سے ہی ایک ہلچل تھی۔ دادی اماں اپنے خاص تخت پر بیٹھی پاندان کھولے حکم چلا رہی تھیں، جبکہ آبا جان کھاتے رجسٹر میں لکھتے ہوئے حلوائی اور کیٹرنگ والے سے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ پورے گھر میں چائے کی پتنگار اور تلے ہوئے پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وجہ بہت بڑی تھی۔ گھر کی بڑی بیٹی مہرین کی شادی طے ہو چکی تھی اور اب 1 مہینے کے اندر شادی کی تمام تیاریاں مکمل کرنی تھی۔ شزرا، ذرا دادی کا پان تو بنا دو، اور دیکھو باورچی خانے میں دودھ نہ ابل جائے۔ تائی جان نے صحن سے گزرتے ہوئے آواز لگائی۔ شزرا، جو دوپٹہ سنبھالتی باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی، مسکرا دی۔ گلابی اور سفید شلوار قمیض میں اس کا سادگی سے بھرا چہرہ اور بھی نکھر رہا تھا۔ تائی جان، پان بن گیا ہے اور دودھ میں نے ہلکی آنچ پر کر دیا ہے۔ شزرا گھر کی سب سے چلبلی اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ پورا گھر اس کی ایک آواز پر نثار رہتا تھا۔ وہ پان کی تشتری لے کر دادی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا دوپٹہ ہلکے سے کھینچ لیا۔ شزرا نے مڑ کر دیکھا، سامنے شزیر کھڑا تھا۔ شزیر کالے کرتے اور سفید پاجامے میں ملبوس، آنکھوں میں ہلکی سی شرارت اور مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شزیر بڑے تایا کا بیٹا تھا، جو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب آبا جان کے ساتھ خاندانی کاروبار سنبھال رہا تھا۔ وہ جتنا سنجیدہ اور باوقار تھا، شزرا کے سامنے آتے ہی اس کا انداز اتنا ہی نرم ہو جاتا تھا۔ شزرا خانم، صبح سے سب کے کام ہو رہے ہیں، ہمارے لیے چائے کا ایک کپ بھی نصیب نہیں ہوا، شزیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ شزرا نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بناوٹی خفگی سے بولی، شزیر بھائی، گھر میں شادی ہے، کام کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور آپ کو اپنی چائے کی پڑی ہے۔ جائیے، ذرا باہر سے زردے کا رنگ اور کیوڑا تو لا دیں۔ پہلے چائے پھر سودا سلف، شزیر نے ایک قدم قریب ہو کر ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ اچھا بابا، بناتی ہوں، ذرا دادی کو پان تو دے آؤں۔ شزرا نے جلدی سے رخ موڑا، مگر اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخ رنگت تیر گئی۔ صحن میں سارے کزنز جمع ہو رہے تھے۔ سب مل کر شادی کے گانوں کی فہرست بنا رہے تھے اور ڈھولک کی پریکٹس کے پلان بنا رہے تھے۔ بڑوں کی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور بچوں کا اپنا الگ ہی ہنگامہ تھا۔ شزرا جب باورچی خانے میں چائے بنانے لگی تو اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ شزیر صحن میں آبا جان کے ساتھ راشن کی لسٹ پر بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار باورچی خانے کی کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس شادی کے ماحول نے ان دونوں کے درمیان ایک انوکھا اور خوبصورت احساس بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی کے بڑے صحن میں پیلے اور نارنجی گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹکا دی گئی تھیں۔ پھپھو اور ان کے بچے بھی سامان کے بڑے بڑے بکسوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف بچیوں کے کہے، سامان کھلنے کی آوازیں اور گھر کے بڑوں کی ہدایتیں گونج رہی تھیں۔ دادی اماں نے اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے ہی حکم جاری کیا، سنو رے سب، آج سے ڈھولک کا باقاعدہ آغاز ہے۔ شزرا، ذرا وہ پرانی ڈھولک کوٹھے سے اترواؤ اور دیکھو شام کا کھانا سب کے لیے صحن میں ہی لگایا جائے۔ شزرا جلدی سے زینہ چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ اس نے زرد رنگ کی سادہ سی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا اور بال جلدی میں پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ زینہ اتر ہی رہی تھی کہ سامنے سے شزیر آتا دکھائی دیا۔ شزیر کے ہاتھ میں پھولوں کی چند ٹوکریاں تھیں، جنہیں وہ صحن میں سجانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ شزرا کے ہاتھ میں پرانی ڈھولک تھی اور وہ جلدی میں ایک قدم نیچے اتری تو اس کا پاؤں قمیض کے گھیر میں الجھ گیا۔ شزرا، شزیر نے فوراً پھولوں کی ٹوکری ایک طرف رکھی اور شزرا کا بازو تھام لیا۔ شزرا کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ شزیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس کر سکتی تھی۔ شزیر کی گہری آنکھیں سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ دیکھ کر شزرا خانم، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ شزیر کی آواز میں فکر اور ایک سحر انگیز نرمی تھی۔ شزرا نے جلدی سے اپنا بازو چھڑایا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ دادی نے ڈھولک منگوائی تھی، بس میں وہی لے جا رہی تھی، اور اگر گر جاتی تو ڈھولک کا تو پتہ نہیں، تمہارا پیر ضرور ٹوٹ جاتا، شزیر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کے ہاتھ سے ڈھولک لے لی۔ چلو یہ میں لے کر چلتا ہوں، تم آرام سے آؤ۔ صحن میں پہنچتے ہی کزنس نے شور مچا دیا، لو بھائی، ڈھولک بھی آ گئی اور ہمارے شزیر بھائی بھی پھولوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ شزرا شرما کر تائی جان کے پاس جا کر بیٹھی اور سبزی کاٹنے میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کھانا صحن میں کھلے آسمان تلے لگایا گیا۔ گرم گرم روٹیاں کڑاہی اور ساتھ میں زردہ، سب مل کر کھا رہے تھے اور ساتھ ہی شادی کی رسم و رواج پر بحث ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد صحن کے مرکز میں قالین بچھایا گیا۔ سب کزنس دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ شزرا نے آگے بڑھ کر ڈھولک پر تھپک دی اور اس کی سریلی آواز نے صحن کا ماحول ہی بدل دیا۔ شادی مبارک، مہرین کو شادی مبارک۔ سب لڑکیاں گانا گانے لگیں اور تالیاں بجانے لگیں۔ شزیر صحن کے ایک کونے میں آبا جان اور تایا کے ساتھ بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان شزرا کی طرف تھا، جو ڈھولک بجاتے ہوئے چہرے پر آئی زلفوں کو بار بار پیچھے ہٹا رہی تھی۔ اچانک شزرا نے گاتے گاتے نظر اٹھائی اور اس کی نگاہیں شزیر کی نظروں سے ٹکرا گئیں۔ شزیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ کی چائے کا کپ اس کی طرف اٹھایا۔
जैसे कह रहा हो तुम्हारी ढोलक से ज्यादा खूबसूरत आवाज और कोई नहीं। शजरा की गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई और उसके हाथ ढोलक पर एक पल के लिए थम गए। सुबह का सूरज निकलते ही हवेली के सहन में पीले रंग की बहार आ चुकी थी। मटकी, मांझा और उपटन की तैयारियां के लिए मिट्टी के छोटे छोटे प्याले, उपटन के थाल और सरसों के तेल की बोतलें सहन की तिपाई पर सजाई गई थी। तमाम लड़कियां और औरतें जर्द और गहरे पीले रंग के लिबास में मलबूस थी और पूरे घर में अर्की गुलाब और उपटन की भीनी भीनी खुशबू रच बस गई थी। दादी ने अपनी चिलमन के पीछे से आवाज लगाई, शजरा बेटी, उपटन का थाल जरा मेहरीन के पास रखो और देखो बाहर से कच्चा दूध और गुलाब की पत्तियां आई हैं या नहीं। शजरा, जिसने हल्के पीले रंग का कुर्ता और गहरे पीले रंग का दुपट्टा पहन रखा था, जल्दी से बावर्ची खाने के पास वाले दलान की तरफ बढ़ी। उसके हाथों में कांच की पीली चूड़ियां छन छन कर रही थी। दलान में शजीर अकेला खड़ा था। उसने लाइम ग्रीन सब्जी माइल पीले रंग का सादा कुर्ता पहन रखा था और वो मिट्टी की मटकियों को सीधा करके रख रहा था। शजरा ने पास जाकर गुलाब की पत्तियों की टोकरी रखी और बोली, शजीर भाई, ये मटकियां तो दादी ने सेहन की दाईं तरफ रखने को कहा था, आप यहाँ क्यों रख रहे हैं? शजीर ने मुड़कर देखा। पीले दुपट्टे के साए में शजरा का चेहरा सुबह की धूप की तरह दमक रहा था। उसने हाथ से उपटन के बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मटकियां तो वहीं जाएंगी शजरा खानम, लेकिन जरा ये तो बताओ कि इस उपटन में इतना अर्के गुलाब किसने डाला है? ये तो बह जाएगा। मैंने ही डाला है और बिल्कुल ठीक डाला है, शजरा ने मान से कहा और खुद चेक करने के लिए प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया। इसी अवस्था में शजीर ने भी प्याले को संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। दोनों के हाथ एक साथ उपटन के प्याले के किनारे पर टकरा गए। शजीर के हाथ की पुष्ट पर उपटन का एक चटखार लग गया और उसका हाथ शजरा की उंगलियों से छू गया। शजरा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, मगर उसकी उंगलियों पर लगा हल्का सा उपटन शजीर की आस्तीन पर लग गया। शजीर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी उंगली से अपनी आस्तीन पर लगा थोड़ा सा उपटन उठाया और बगैर कुछ कहे नहायत नरमी से शजरा के दाएं गाल पर लगा दिया। ये आपने क्या किया? शजरा ने आंखें बड़ी करके हैरत और शर्म के मिले जुले एहसास से पूछा। उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। उपटन की रस्म की शुरुआत घर के सबसे प्यारे इंसान से होनी चाहिए, शजीर ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, जिसमें सच्चाई की ऐसी गर्मी थी कि शजरा की जबान कंग हो गई। शजरा, कहाँ रह गई बेटी? बाहर से ताईजान की आवाज गूंजी। शजरा ने बदहवासी में अपना दुपट्टा संभाला और बिना उपटन का थाल उठाए सहन की तरफ भाग गई। शजीर ने मुस्कुराते हुए उपटन का प्याला उठाया और उसके पीछे पीछे सहन में आ गया। सहन में ढोलक की थाप पर सुहाग के गाने शुरू हो चुके थे। मेहरीन को बीच में बिठाकर उपटन लगाया जा रहा था और सब कजन्स एक दूसरे को उपटन लगाकर हंगामा कर रहे थे। शजरा एक कोने में खड़ी अपने गाल को दुपट्टे के कोने से साफ करने की कोशिश कर रही थी, जहां शजीर का छुआ हुआ उपटन लगा था, मगर वो रंग साफ होने के बजाय उसके दिल पर और गहरा उतर रहा था। शजीर ने दूर से उसे देखा, चाय का गिलास उठाया और आंखों ही आंखों में इशारा किया जैसे पूछ रहा हो, रंग पसंद आया? शजरा ने जल्दी से रुख मोड़ लिया, मगर उसके होठों पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट बिखर गई। दिन भर की भागदौड़ और उपटन की रस्म के बाद जब हवेली में बड़ों का हंगामा जरा धीमा हुआ, तो तमाम कजन्स ने खुली छत का रुख किया। चांदनी रात की हल्की ठंडी हवा में छत पर चटाइयां बिछा दी गई थी और एक तरफ केतली में गरम गरम चाय उबल रही थी। शजरा अपने दुपट्टे को संभालती हुई चाय के कप ट्रे में सजाकर ऊपर लाई। दिन वाले वाक़ये के बाद से वो शजीर का सामना करने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, मगर दिल के किसी कोने में उसका सामना करने की एक मुट्ठी भर खुशी भी थी। अरे शजरा, जल्दी आओ यार, हम तो चाय के इंतजार में सो ही चले थे, छोटी फुप्पो की बेटी सना ने आवाज लगाई। बस बस, सबके लिए चाय लाई हूँ, शजरा ने मुस्कुराकर ट्रे चटाई के बीच में रख दी। शजीर छत की मुंडेर के पास खड़ा नीचे सहन की रोशनियों को देख रहा था। वो सफेद सीधे कुर्ते में मलबूस था और चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी बावकार लग रहा था। जैसे ही शजरा ने ट्रे रखी, शजीर घूमकर चटाई की तरफ आया और शजरा के बिल्कुल सामने बैठ गया। शजरा ने जल्दी से नजरें झुका ली और सबको चाय के कप पकड़ाने लगी। जब उसने आखिरी कप शजीर की तरफ बढ़ाया तो शजीर ने कप थामते हुए धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया शजरा खानम, वैसे उपटन तो अब भी आपके गाल पर हल्का सा नजर आ रहा है। शजरा ने घबराकर अपने गाल पर हाथ रखा। क्या वाकई? मैंने तो अच्छी तरह मुंह धोया था। शजीर के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी। नहीं, चेहरे से तो साफ हो गया है, मगर लगता है रंग दिल पर चढ़ गया है। पास बैठी कजन सना ने दोनों को गपशप करते देखा तो बोली, अरे शजीर भाई, आप शजरा को क्या बातें बता रहे हैं? यहाँ आइए और जरा डांस की प्रैक्टिस का म्यूजिक सेट करके दीजिए। शजीर ने मुस्कुराकर कप एक तरफ रखा। आया बाबा आया। छत पर गाने बजने लगे और सब कजन्स हल्के फुल्के कदमों से डांस की प्रैक्टिस करने लगे। शजरा चाय की केतली संभालती हुई एक तरफ खड़ी होकर उनकी हंसी खुशी देखने लगी। कुछ देर बाद जब सब गानों और हंगामों में मसरूफ थे, शजरा मुंडेर के पास जाकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से जुल्फों को उड़ा रही थी। शजीर खामोशी से उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था, मगर खामोशी बहुत गहरी थी। शजरा,
शजीर ने चांद को देखते हुए नरमी से पुकारा। जी, शजरा ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया। शादी के कामों में थक तो नहीं जाती? मैं देखता हूँ सुबह से रात तक तुम सबका ख्याल रखती हो, मगर अपना ख्याल रखना भूल जाती हो। शजरा ने मुड़कर शजीर को देखा। उसकी आंखों में बेपनाह फिक्र और मोहब्बत देखकर शजरा का दिल भर आया। जब अपने साथ हों और आप जैसा ख्याल रखने वाला कोई पास हो, तो थकान महसूस ही नहीं होती शजीर भाई। शजीर भाई के लफ्ज पर शजीर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, बस ये भाई कहना बंद कर दो तो मजीद अच्छा लगे। शजरा के चेहरे पर हया का एक शफक फैल गया और उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। इस चांदनी रात में हवेली की छत पर दोनों के खामोश जज्बात ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सुबह होते ही हवेली के बाहर 3-4 गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। आज बाजार जाकर शादी के भारी जोड़ों, गोटापट्टी और जेवरात की खरीदारी का बड़ा दिन था। ताईजान, फूफो, दादी और तमाम कजन्स तैयार होकर गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। दादी ने अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा, सुनो रे, शजीर गाड़ी खुद चलाएगा और देखो शजरा को भी इसी गाड़ी में बिठाओ ताकि बाजार में सामान का हिसाब किताब और रसीदें संभाली जा सकें। शजरा ने फिरोजी रंग का सादा मगर खूबसूरत सूट पहन रखा था, जिस पर हल्का सा नलकी का काम था। उसने अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर टिकाया और शजीर की गाड़ी की अगली नशिस्त के बजाय पिछली नशिस्त पर बैठने लगी, मगर सना ने जबरदस्ती उसे आगे धकेल दिया। अरे शजरा, तुम आगे बैठो, तुम्हें राशन और कपड़ों की लिस्ट संभालनी है, हम पीछे आराम से बैठेंगे। सना ने शरारत से आंख मारकर कहा। शजीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर शजरा को बैठने का इशारा किया। जैसे ही गाड़ी बाजार की तरफ बढ़ी, शजरा के हाथ में पकड़ाई गई लिस्ट को देखकर शजीर ने धीमी आवाज में पूछा, जी शजरा खानम, पहली दुकान कौन सी है, गोटा किनारी वाली या बनारसी जोड़ों वाली? पहले बनारसी कपड़ों की दुकान पर जाना है शजीर। शजरा की जबान से भाई का लफ्ज निकलते निकलते रह गया। उसने शजीर की तरफ देखा तो वो गाड़ी चलाते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। बाजार में शादी का जबरदस्त रश था। कपड़ों की बड़ी दुकान में थान के थान खोलकर दिखाए जा रहे थे। ताईजान और फुफ्फो कपड़ों के कपड़े और रंग मिलाने में मसरूफ थी, जबकि कजन्स मैचिंग की चूड़ियां और खुसे पसंद कर रही थीं। शजरा एक तरफ खड़ी फिरोजी और सुनहरे रंग के एक दुपट्टे को हाथ लगाकर देख रही थी। दुपट्टे का काम बहुत नफासत से हुआ था और उसकी गोटा पट्टी चांदनी की तरह चमक रही थी। पसंद आया? पीछे से शजीर की आवाज आई। शजरा ने मुड़कर देखा। शजीर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसने दुपट्टे को शजरा के शाने पर रखकर देखा और निहायत नरमी से कहा, यह रंग तुम पर बहुत जचेगा शजरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज तुमने पहन रखा है। शजरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये ये तो मेरी नापी के लिए जोड़ा देख रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं देख रही, मगर मैं देख रहा हूँ। शजीर ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और ये मैं तुम्हारे लिए ही लूंगा। दुकान से निकलकर सब लोग ज्वेलरी मार्केट की तरफ बढ़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। एकदम से लोगों का हुजूम आया तो शजरा का हाथ ताईजान के हाथ से छूट गया और वो भीड़ में पीछे रह गई। शजरा बदहवास होकर दाएं बाएं देखने लगी। ताईजान, सना। अभी वो घबरा ही रही थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को बहुत हौले से मगर पूरे भरोसे के साथ थाम लिया। शजरा ने घबरा कर देखा, वो शजीर था। उसने शजरा को भीड़ से बचाते हुए अपने करीब कर लिया। मैं हूं ना, घबराती क्यों हो? शजीर की आवाज में इतनी हिफाजत और अपनाइत थी कि शजरा का दिल एक पल में सुकून में हो गया। शजीर ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी और पूरे बाजार में उसे अपने साथ साथ लेकर चलता रहा। शजरा ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। इस गर्म जोश और भरोसेमंद लम्स ने उन दोनों के रिश्ते पर मोहब्बत की एक अनमिट मोहर लगा दी थी। बाजार से वापसी के बाद हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। खरीदे हुए जोड़ों के खुले थान, गोटापट्टी के लच्छे और ज्वेलरी के डब्बे सहन के बड़े तख्त पर बिखरे हुए थे। ताईजान और दादी अम्मा चीजें अलग अलग करने में मसरूफ थी, जबकि लड़कियां अपने अपने कपड़े और चूड़ियां मिलाकर खुशी से नारे लगा रही थीं। शजरा अपने कमरे में जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। उसने बालों का जूड़ा खोला तो घने स्याह बाल शानों पर बिखर गए। जैसे ही उसने अपनी कलाई देखी, उसे बाजार में शजीर के हाथ का गर्म जोश लम्स याद आया और उसके चेहरे पर हया का रंग गहरा हो गया। थोड़ी देर में रूम में कजन सना एक बड़ा सा तोहफे का लिफाफा लेकर आई और शजरा के बिस्तर पर फेंक दिया। ये लो, शजीर भाई ने भिजवाया है और कहा है कि ये सिर्फ शजरा के लिए है। सना ने शरारत से आंख मारकर कहा और हंसती हुई बाहर भाग गई। शजरा का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर वही फिरोजी और सुनहरे काम वाला दुपट्टा था जो उसने बाजार में पसंद किया था, और साथ ही कांच की फिरोजी चूड़ियों का एक सेट था। लिफाफे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी था जिस पर शजीर की तहरीर में लिखा था, बाजार में तुम्हारी नजरें इस दुपट्टे से हट नहीं रही थी। ये तुम्हारी पसंद है और तुम्हारी पसंद अब मेरी जिम्मेदारी है। मेहंदी की रात इसे जरूर पहनना। शजरा ने दुपट्टे को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के गौहर चमकने लगे। शाम होते ही हवेली का सहन पीली रोशनी और गेंदे के फूलों की खुशबू से महक उठा। ढोलक फिर से बजाई गई और मेहंदी लगाने वाली लड़कियां बुला ली गईं। कजन्स का हंगामा उरूज पर था।
शजरा ने वही फिरोजी दुपट्टा संभाल कर ओढ़ा हुआ था और हाथ में फिरोजी चूड़ियां छनका रही थी। वो सहन के कोने में बैठकर अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। शजीर सफेद चुस्त पजामे और गहरे हरे रंग के कुर्ते में मलबूस अपने दोस्तों और कजन्स के साथ खाना बिछाने का सामान संभाल रहा था। जैसे ही उसकी नजर शजरा पर पड़ी, जो फिरोजी दुपट्टे में शमा की तरह जगमगा रही थी, वो अपने कदम रोक न सका। वो आहिस्ता से शजरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। दुपट्टा आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है शजरा खानम। शजीर ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, जो सिर्फ शजरा ही सुन सकती थी। शजरा ने जल्दी से हाथ उठाया ताकि मेहंदी खराब न हो और शजीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में तशक्कुर और मोहब्बत का अजीब सा समंदर था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खूबसूरत है, शजरा ने मध्यम आवाज में कहा। दुपट्टा खूबसूरत नहीं है, पहनने वाली का रूप इसे खूबसूरत बना रहा है। शजीर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसी वक्त मेहंदी लगाने वाली लड़की ने पूछा, बाजी, हाथ के बीच में किसका नाम लिखूं? शुरुआत का लफ्ज बता दें। शजरा घबराकर शजीर को देखने लगी और शजीर ने एक माने खेज मुस्कुराहट के साथ हल्की सी गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो, शीन लिखवा दो। शजरा का चेहरा शर्म से गुलाब की तरह सुर्ख हो गया और उसने जल्दी से नजरें झुका दी। कहानी का आने वाला मोड़। मेहंदी की रात, कजन्स के डांस और गानों का मुकाबला होगा। शजीर और शजरा की एक साथ पेशकारी क्या सबका दिल जीत पाएगी? क्या उनके रिश्ते को किसी की नजर लग जाएगी और उनके बीच जुदाई आ जाएगी, या उनका रिश्ता गहरा होगा? कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखिए।